Yes, good afternoon again. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Let's work on the zeta coordinates now. So let me convert it into it. So if I'm having a certain element, so this is x1, this is x2. So this whole length is covered between zeta equal to -1, zeta equal to +1. Okay, so what is the relation between zeta x and zeta? So the relation between x and zeta can be written as x equal to the midpoint x1 plus x2 divided by 2 plus the x2 minus x1 divided by 2 into zeta. This relation can be written. How this relation is given? You can say when x equal to x1, or you can say when zeta equal to -1, when zeta equal to -1, x equal to x1, x equal to x1. This is the first condition. Second condition is when zeta equal to +1, x must be equal to x2. So now check this transformation. Check this transformation. First, I am checking the first condition. So if zeta equal to -1, if I put zeta equal to -1 in place of zeta, then I will get x1 by 2 plus x2 by 2. Zeta is -1. So -1 into, so it is minus x2 by 2 plus x1 by 2. Zeta has been put -1. So this will be cancelled out. So this is x1 by 2 plus x1 by 2 is twice x1 by 2. So it is basically x1. So x equal to x1. So the condition is satisfied. When zeta equal to -1, x equal to x1. Correct? Similarly, you can check the other condition. So for the other condition, you will write x1 by 2 plus x2 by 2 plus zeta is +1 into x2 by 2, it is x2 by 2 minus x1 by 2, x1 by 2 cancel. So it is twice x2 by 2, it is basically x2. So when zeta equal to +1, the second condition x equal to x2 is also satisfied. So basically this equation is the transformation between x and zeta. So from next time we will write this transformation very easily. The transformation between x and zeta is given by x equal to x1 plus x2 by 2 plus x2 minus x1 by 2 into zeta. Correct? So for any element, this is x1, this is x2, zeta is -1, zeta is +1. I can write the transformation x equal to x1 plus x2 by 2 plus x2 minus x1 divided by 2 into zeta. Now, if I solve it, so this is x1 by 2 plus x2 by 2 plus x1 into zeta by 2, x2 into zeta by 2 minus x1 into zeta by 2. The first term and last term, x1 can be taken as common. So it is 1 minus zeta by 2 x1 plus, and the second and third term x2 can be taken as common. So it is 1 plus zeta by 2 into x2. Okay. So by ordinary equation, we have x equal to n1 x1 plus n2 x2, n1 x1 plus n2 x2. So if I compare this equation by this equation, x equal to 1 minus zeta by 2 x1 plus 1 plus zeta by 2 x2. So on comparing, I have
n1 equal to 1 minus zeta by 2 and n2 equal to 1 plus zeta by 2. So in the form of natural coordinates, है ना, just zeta is known as natural coordinates. Zeta is known as natural coordinate. So in the form of natural coordinate, the shape function are given by 1 minus zeta by 2 and 1 plus zeta by 2. तो जो फंक्शन पहले 1 माइनस एक्स बाई एल और एक्स बाई एल हुआ करते थे, तो अब हमारे जो नेचुरल के फॉर्म में जो फंक्शन है वो 1 माइनस जीटा बाई 2 एंड 1 प्लस जीटा बाई 2 होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन हो गए। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो लेट आई टेक ए न्यूमेरिकल ऑन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दिस इज ए लीनियर एलिमेंट। x1 is given 25, x2 is given 50. The question is find the shape functions and displacement for point P. So point P is given over here, x3 is given. Question is find the shape functions, and the displacement for point P. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बड़े इजी तरीके से। दिस इज नोट नंबर 1, दिस इज नोट नंबर 2, दिस इज द पॉइंट ऑन व्हिच एक्सरसाइज हैज टू बी डन। मेरी आवाज आ रही है ना साफ आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए शेप फंक्शन। तो शेप फंक्शन के लिए मुझे चाहिए जीटा की वैल्यू ना। मान लीजिए मुझे पॉइंट पी के लिए शेप फंक्शन निकालना है, तो शेप फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है? शेप फंक्शंस होते हैं 1 माइनस जीटा बाई 2 और 1 प्लस जीटा बाई 2, यही शेप फंक्शन होते हैं। तो n1 और n2 है ना, ठीक है। n1 n2 आर दी शेप फंक्शंस। तो शेप फंक्शंस, यदि मैं पॉइंट 1 के लिए शेप फंक्शन निकालना चाहूं, है ना, पॉइंट 1 के लिए, तो पॉइंट 1 के लिए जीटा फिक्स होता है। व्हाट इज जीटा? -1। तो पॉइंट 1 के लिए तो n1 n2 बड़े आराम से निकल जाएंगे। 1 माइनस -1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 2/2, दैट इज 1। और यहाँ हो गया 1 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, तो इट इज 0। सो फॉर पॉइंट 1 the shape functions are 1 and 0. For point 2 के लिए शेप फंक्शन बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले वही रहेंगे, 1 माइनस जीटा बाई 2, 1 प्लस जीटा बाई 2। जीटा की वैल्यू कितनी है पॉइंट 2 के लिए? +1 फिक्स होती है। टोटल लेंथ को हम -1 से +1 के बीच कंसीडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कोऑर्डिनेट्स। सो इट इज 1 minus 1 by 2, so it is 0, and it is 1 plus 1 by 2, so it is 1. So 1 and 0, 0 and 1. Point 1, point 2 के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन हमसे किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करवा रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द शेप फंक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर पॉइंट P. P के लिए हमको n1 और n2 चाहिए। We need shape functions for point P. तो शेप फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जीटा फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शेप फंक्शन के फॉर्मूलेज में जीटा आता है। तो हमें जीटा फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीटा फॉर पॉइंट पी। पी के लिए जीटा की वैल्यू क्या है? अब इस जीटा की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या होता है? n1 x1 प्लस n2 x2। लीनियर एलिमेंट के केस में x इक्वल टू होता है n1 x1 प्लस n2 x2। नाउ यदि हम इसको पॉइंट P के लिए अप्लाई करें तो x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35, है ना। तो x इज गिवन 35। n1 का फॉर्मूला वही है 1 माइनस जीटा बाई 2। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 प्लस n2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस जीटा बाई 2। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50
ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखें तो जीटा नोन है, जीटा कैन बी फाउंड आउट। जरा इसको सॉल्व करिए और बताइए जीटा कितना आ रहा है ना, प्लीज सॉल्व इट। सो इट इज गिवन बाय 25/2 प्लस 50 × 1 50/2 माइनस 25 जीटा/2 plus 50 zeta/2. So it is 75/2 means 37.5. 50 minus 25 plus 25/2 means 12.5 zeta. So 12.5 zeta is 35 minus 37.5. So it is minus 2.5. So zeta is minus 2.5 divided by 12.5. Solve it. कितना आ रहा है? Minus 2.5 divided by 12.5 कितना आ रहा है प्रत्युष? So minus 1.5, minus 1/5. Minus 1/5, so it is minus 0.2. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जीटा की जो फाइनल वैल्यू है दैट इज माइनस 0.2। जीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जीटा की जो वैल्यू है वो -0.2 है, ये हमने पता कर लिया। वंस द वैल्यू ऑफ जीटा इज नोन वी कैन फाइंड द शेप फंक्शंस वेरी इजीली। तो शेप फंक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो शेप फंक्शन के फॉर्मूले तो वही रहेंगे, है ना। शेप फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो तो वही रहेंगे। तो शेप फंक्शन का पहला फॉर्मूला क्या है? अब हम बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट P। तो इस पॉइंट के लिए n1 इज गिवन बाय 1 माइनस जीटा/2, सो इट इज 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2, है ना। जीटा की वैल्यू -0.2 आई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। 1 माइनस जीटा, जीटा इज -0.2, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1 प्लस 0.2/2, 1.2/2, so this is 0.6. So shape function is 0.6. Now the second shape function n2 is given by 1 plus zeta/2, so it is 1 minus 0.2/2, 0.4, so it is 0.4. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके शेप फंक्शंस फाइंड कर लिए फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट P। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेप फंक्शन के अलावा आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है n1 x1 प्लस n2 x2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n1 u1 प्लस n2 u2, करेक्ट। तो आप पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट जब ही निकाल सकते हो जब आपको पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट पता हो और पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट पता हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, u1 इज गिवन, u2 इज आल्सो गिवन। u1 इज गिवन 0.15 and u2 is given minus 0.15, ठीक है। तो if u1 and u2 are given then you can find u for point P। तो पॉइंट P के लिए आप u निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? तो देखिए u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2। अब n1 आपका कितना है? n1 की वैल्यू कितनी है बताइए? 0.6, है ना, 0.6। अभी आपने निकाली है पॉइंट P के लिए n1 कितना निकाला है? 0.6 निकाला है। तो n1 इज 0.6 और u1 आपको दिया है क्वेश्चन में 0.15 प्लस n2 0.4 और u2 आपको दिया है माइनस 0.15। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आता है? 0.03. 0.03, very good. So this is 0.03 units.
जो भी यूनिट्स होगी, तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया और वो भी निकाल लिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाया करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं अब फिर एक न्यूमेरिकल और देने वाला हूं जो आपको करके दिखाना है ना, कुछ इसी तरह का होगा। क्लियर है? सेफ फंक्शन है ना, तो सेफ फंक्शन के फॉर्मूले 1 माइनस जीटा बाई 2, 1 प्लस जीटा बाई 2। चलिए अब और बात करते हैं, एक नई मेथड पढ़ लेते हैं, इसका नाम है सेरेंडिपिटी अप्रोच। सेरेंडिपिटी अप्रोच। इस मेथड का यूज करके हम सेफ फंक्शंस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। सेफ फंक्शन को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये मेथड क्या बोलती है कि सपोज यू आर हैविंग द लीनियर एलिमेंट 1 and 2, this is the linear element. For this point zeta equal to -1, for this point zeta equal to +1. You are interested in finding n1 and n2. So by this method, n1 can be written as a scale factor SF. SF is scale factor, है ना। n1 is safe function and SF is scale factor. Scale factor multiplied by, if you are working on point 1, you are calculating the safe function for point 1, it means you are working on point 1. So you have to consider the other points. For the other point, there is only one point 2 for which zeta equal to +1. Zeta equal to +1 means zeta minus 1 equal to 0. So this is the equation for this point zeta minus 1. So I will multiply this by zeta minus 1. ठीक है, ये मेथड का पार्ट है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी सेफ फंक्शन निकालना हो तो एक स्केल फैक्टर लेते हैं और बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट को छोड़कर उन सभी पॉइंट्स की इक्वेशन लिख देते हैं, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n1 इक्वल टू SF इंटू जीटा माइनस 1, करेक्ट। n1 इक्वल टू SF इंटू जीटा माइनस 1, करेक्ट। अब बताइए इस पॉइंट के लिए सेफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू 1 होगी ना। किसी भी पॉइंट पर उसकी अपने पॉइंट की जो सेफ फंक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सो आई कैन राइट n1 इक्वल टू 1, SF is scale factor which is unknown, zeta, what is the value of zeta for this point? Zeta is -1, so I can put -1 minus 1. So by here 1 equal to SF into -2. So from here SF is -1/2, है ना। Scale factor is -1/2. So from this line n1 is given by -1/2, the value of scale factor, into zeta minus 1. By solving it, 1 minus zeta by 2. So n1 equal to 1 minus zeta by 2. यही तो आया था आंसर, पहले भी यही आया था, अब भी यही आया है। तो सेरेंडिपिटी मेथड की हेल्प से भी हम सेफ फंक्शंस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये मेथड ज्यादा यूजफुल है ना। इससे पहले वाली जो मेथड है वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है जब हम लीनियर एलिमेंट के बाद क्वाड्रेटिक एलिमेंट पे वर्क करते हैं। क्वाड्रेटिक एलिमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ द नोड्स बढ़ जाते हैं। एक नोड 1, दूसरा नोड 2, एक तीसरा नोड और आ जाता है बीच में, ठीक है। तो इस नोड के लिए जीटा इक्वल टू -1, इस नोड के लिए जीटा इक्वल टू +1, इस पर्टिकुलर नोड के लिए जीटा इक्वल टू 0 if it is a middle point, and generally it is a middle point. So इस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एलिमेंट। जब 3 पॉइंट गिवन होंगे तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एलिमेंट।
और जब केवल दो ही पॉइंट गिवन होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको लीनियर एलिमेंट के लिए सेरेंडिपिटी अप्रोच बता रहा हूं, और आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द सेफ फंक्शंस फॉर द क्वाड्रेटिक एलिमेंट बाय द सेरेंडिपिटी अप्रोच। तो मेरे ख्याल से n1 तक तो क्लियर है, यस और नो? यस सर। है ना, क्लियर है। अब हम n2 निकालेंगे। तो n2 निकालने के लिए n2 है ना, बात लीनियर एलिमेंट के लिए हो रही है ना, लीनियर एलिमेंट, अभी लीनियर एलिमेंट पे बात चल रही है। तो दोबारा से लीनियर एलिमेंट ले लेता हूं। पॉइंट इज 1, पॉइंट इज 2, दिस नोड इज 1, नोड इज 2। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग n2, so I am working on point 2. So n2 is given by scale factor multiplied by the equation of other points. So I am working on point 2, so other point is 1. So equation for point 1 is, for this point zeta is -1, so zeta plus 1 equal to 0. So the equation is zeta plus 1. Left hand side is zeta plus 1. So I am multiplying it by zeta plus 1. So for this point n2 will be 1 and n1 will be 0. So n2 is 1, scale factor is unknown, zeta is +1 for this point, so it is 1 plus 1, so SF is 1 by 2. Scale factor हमने कैलकुलेट कर लिया। Now calculate the shape function. n2 is, scale factor is 1 by 2, zeta plus 1, so it is 1 plus zeta by 2. So n2 equal to 1 plus zeta by 2. So serendipity approach की हेल्प से हमने लीनियर एलिमेंट के लिए सेफ फंक्शंस कैलकुलेट कर लिए। एक सेफ फंक्शन आया 1 माइनस जीटा बाई 2 और दूसरा सेफ फंक्शन आया 1 प्लस जीटा बाई 2। ठीक है, सेफ फंक्शन 1 प्लस जीटा बाई 2, दूसरा सेफ फंक्शन 1 माइनस जीटा बाई 2। ठीक है, दो ही सेफ फंक्शन होते हैं लीनियर एलिमेंट में। लीनियर एलिमेंट में दो ही सेफ फंक्शन होते हैं। क्वाड्रेटिक एलिमेंट में कितने सेफ फंक्शन होते हैं? 3। और क्यूबिक एलिमेंट में कितने सेफ फंक्शन होते हैं? 4। ठीक है, क्यूबिक एलिमेंट में 4 सेफ फंक्शन होते हैं। देखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। जब हम चार नोड्स दे रखे हो किसी एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट एक ही है, उसके अंदर 4 नोड है, देन इट इज ए क्यूबिक एलिमेंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 4 सेफ फंक्शन होंगे, n1, n2, n3, n4। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए n1 की वैल्यू होगी 1, बाकी सब हो जाएंगी 0। ठीक है, n1 की वैल्यू होगी 1, बाकी सब हो जाएंगी 0। ठीक है, लीनियर में भी यही हुआ था। लीनियर के केस में आपने क्या देखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 2 सेफ फंक्शन थे, एक n1 एक n2। तो n1 की वैल्यू हो गई 1, बाकी हो गई 0। ऐसी पॉइंट 2 के लिए n2 हो गया 1, बाकी हो गए 0। इसी तरह क्यूबिक एलिमेंट में इस पॉइंट के लिए n1 हो जाएगा 1, बाकी 0। पॉइंट 2 के लिए फिर से 4 सेफ फंक्शन होंगे, n1, n2, n3, n4। n2 हो जाएगा 1, बाकी सब हो जाएंगे 0। ठीक है, अच्छा आपका एमटेक थर्ड ईयर तो बंद है, मुझे लगा थर्ड ईयर नहीं है, वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड। So for this point n4, again there are 4 safe functions, n1, n2, n3 and n4. n4 will be 1 and others will be 0. And similarly here also n1, n2, n3, n4, 4 safe function होंगे, n1 0, n2 0, n3 1, n4 0। ये बात समझ में आ गई? हर पॉइंट के लिए 4 फंक्शन, खुद की वैल्यू 1, बाकी सब 0। 4 सेफ फंक्शनों में वो सेफ फंक्शन 1 जिस नोड पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। ठीक है, यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करें
तो क्वाड्रेटिक में देखो 3 नोड हैं, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे 3 शेप फंक्शन होंगे, n1 n2 n3। किसकी वैल्यू 1 होगी बताओ? n1 will be 1, others will be 0. Here n3 will be 1, others will be 0. n2 0, n1 0. And here n1 n2 n3, n2 will be 1, others will be 0. है ना? इन लीनियर n1 n2 दो होंगे, n1 will be 1, n2 will be 0. यहाँ भी दो होंगे, n1 n2, n1 will be कितना होगा? 0, n2 will be 1. इन दिस ये सेरेंडिपिटी अप्रोच जो है स्केल फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए n1 की वैल्यू को यूज करती है। जैसे आप पॉइंट 1 पे काम कर रहे हैं तो पॉइंट 1 पे शेप फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो इट इज यूजिंग दैट नॉलेज फॉर फाइंडिंग दी SF। तो कुल मिलाकर लीनियर एलिमेंट के लिए शेप फंक्शन क्या होते हैं? फाइनली देखो 1 के लिए, 2 के लिए, अब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है, P, Q, R, S, T। तो P, Q, R, S, T के लिए बता सकते हो P के लिए शेप फंक्शन क्या होंगे? एनीवन बताइए आप में से, P के लिए शेप फंक्शन क्या होगा? Q के लिए क्या होगा? R के लिए क्या होगा? S के लिए क्या होगा? T के लिए क्या होगा शेप फंक्शन? एनीवन? सोचिए बताइए, आधा 0 सेशन है। सर पी के लिए एन पी बराबर बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, पीपीटी विजिबल? Yes, sir. तो हम लोग पढ़ रहे थे सेरेंडिपिटी अप्रोच, है ना? सेरेंडिपिटी अप्रोच में हमने काम किया पहले लीनियर एलिमेंट पर, है ना? तो मैं ये नाम डाल देता हूं, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट की पहचान है कि आपको केवल 2 नोड गिवन है और आपको अदर नोड्स के लिए काम करना है। आपको 2 नोड गिवन है और अदर नोड्स पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो इस नोड के लिए जीटा कितना होगा? -1 फिक्स है। इस लास्ट नोड के लिए जीटा क्या होगा? +1 होगा। अब P, Q, R, S के लिए जीटा कुछ होंगे, है ना? इसके लिए जीटा कुछ होगा, इसके लिए जीटा कुछ होगा, इसके लिए जीटा कुछ, सबके लिए जीटा अलग अलग होगा, लेकिन होगा -1 और +1 के बीच में ही, है ना? होगा -1 और +1 के बीच में। तो यदि आपसे ये कहा जाए कि पॉइंट P के लिए आप शेप फंक्शन बताइए, पॉइंट P के लिए क्या बताइए? शेप फंक्शन बताइए। तो कैसे निकालोगे पॉइंट P के लिए शेप फंक्शन? अभी प्रूव किए थे कि n1 और n2 शेप फंक्शन होते हैं। पॉइंट P के लिए शेप फंक्शन क्या होंगे? n1 और n2। हमेशा 1 और 2 ही आएगा, क्योंकि लीनियर एलिमेंट में 2 ही पॉइंट गिवन होते हैं, है ना? बाकी तो हम अदर पॉइंट्स के लिए तो काम करते हैं 1 और 2 के फॉर्म में। तो n1 और n2 के फॉर्मूले फिक्स हैं, 1 - ζ/2, 1 + ζ/2। अब जीटा बदलते जाओ, शेप फंक्शन बदलते जाएंगे। यदि पॉइंट P के लिए काम करना है तो जीटा की जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए, Q के लिए काम करना है तो वो रख दीजिए। जीटा बदलता जाएगा, शेप फंक्शन कैलकुलेट होते चले जाएंगे। जिस पॉइंट के लिए आप जीटा की वैल्यू रखोगे उसी पॉइंट के लिए शेप फंक्शंस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। सो लीनियर एलिमेंट पार्ट इज नाउ ओवर। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू क्वाड्रेटिक एलिमेंट। नाउ आई एम मूविंग टू क्वाड्रेटिक एलिमेंट। तो चलिए, माय हेडिंग इज नाउ क्वाड्रेटिक एलिमेंट, है ना? क्वाड्रेटिक एलिमेंट के लिए क्या कैलकुलेट करने हैं? वही करने हैं, शेप फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एलिमेंट का शेप कैसा होता है? उसमें 3 नोड होते हैं, 1, 2
और 3। अब देखो जीटा की वैल्यू 1 के लिए क्या है -1, 2 के लिए क्या है +1, 3 के लिए क्या है 0। ठीक है, अब मैं सेफ फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। सेफ फंक्शन का मतलब है n1 n2 n3 फाइंड करने हैं। किस पॉइंट के लिए? कोई भी पॉइंट हो सकता है, जनरल पॉइंट है ना। पी क्यू आर एस टी जैसे यहाँ लिए थे ऐसे यहाँ पे भी पी क्यू आर एस टी लिए जा सकते हैं, है ना। पी क्यू आर एस यहाँ भी ले जा सकते हैं। तो उन पॉइंट्स के लिए सेफ फंक्शन क्या होंगे? ठीक है, तो जिस प्रकार हम यहाँ पे केवल 1 और 2 दो ही सेफ फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पॉइंट 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 सेफ फंक्शन होंगे। एक n1 होगा, एक n2 होगा और एक n3 होगा। अब हमें इन तीनों के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो वन बाई वन काम करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं n1 पे। तो n1 कैन बी रिटन एज स्केल फैक्टर। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं मैं सॉल्व करने के लिए? सेरेंडिपिटी अप्रोच। ध्यान रखिएगा कौन सी मेथड से काम हो रहा है, सेरेंडिपिटी अप्रोच, है ना। तो सेरेंडिपिटी अप्रोच में देयर इज वन स्केल फैक्टर multiplied by the equations of the other points. So n1 means you are working on point 1, so leave it. Equation of the other point, so what is the equation of this point? Zeta minus 1 equal to 0, so multiplied it by zeta minus 1, multiplied it by zeta minus 1. दोबारा लिख देता हूं, n1 equal to scale factor, ठीक है, multiplied by equation zeta minus 1, and what is the equation of this one? Zeta equal to 0, zeta minus 0 equal to 0. तो एक तरह से zeta ही हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना। so multiplied by zeta only, है ना। zeta equal to 0 given है, तो इसकी zeta only. So now we are working on point 1, so n1 is 1, then sf into zeta. What is the zeta for this point? -1. So it is -1 into -1. Solve it. What is SF? It is -2 into -1 is +2. So SF is 1/2. ठीक है, तो ये हमने स्केल फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्केल फैक्टर को हम यहाँ पुट कर दें, तो n1 इज इसी लाइन से n1 इज स्केल फैक्टर इज 1/2 zeta into zeta minus 1, so it is zeta into zeta minus 1 divided by 2 n1. तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आता है, zeta into zeta divided by 2, zeta into zeta minus 1 divided by 2. So this is our n1. n1 कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह आप n2 कैलकुलेट कर सकते हैं, n3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए n2 कैलकुलेट करके बताइए अब आप, है ना। 1 मिनट का समय, इसी तरह स्केल फैक्टर लेके n2 कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आता है। आर यू लिसनिंग मी? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब आप n2 कैलकुलेट करिए क्वाड्रेटिक एलिमेंट के, बिल्कुल इसी मेथड से।
निकला क्या? यस सर। हाँ बताइए आंसर। जीटा इंटू जीटा प्लस वन हाँ? बाई कितना? टू, इसमें प्लस वन हो जाएगा बस। जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2। यस सर। वेरी गुड, है ना? Yes, sir. वेरी गुड। n2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली इसी मेथड से, है ना? वेरी गुड। अब इसी तरह आप n3 फाइंड करिए और उसका आंसर बताइए। जिसका भी आंसर हो जाए तो मुझे बताइएगा। Yes, what is the answer for n3? 1 minus gamma square. 1 minus Gamma square. gamma Zeta minus theta. zeta. Sir. Zeta na zeta. 1 minus. Zeta square. This is the answer. Okay. No, your answer is correct. So say functions are zeta into zeta minus 1/2, zeta into zeta plus 1/2, and 1 minus zeta square. And now we will do a numerical on the quadratic element. We will do a numerical on the quadratic element. तो एक क्वाड्रेटिक एलिमेंट आपको गिवन है, ठीक है? पहले न्यूमेरिकल लिखिए। एक क्वाड्रेटिक एलिमेंट इज गिवन और क्वेश्चन है, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज द क्वाड्रेटिक एलिमेंट और x1 is 250, x2 is 500, x3 is 375, u1 is 0.15, u2 is minus 0.15, u3 is 0. Okay, these things are given. There is a separate point r. One point r is mentioned here, for which the x coordinate is 325. For which the x coordinate is 325. This is the diagram given. Now the question is, find the shape function and the displacement. Find first the shape functions. Second, displacement for point r. So we are interested in point r. तो r के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या शेप फंक्शंस होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कर सकते हैं आप लोग इसको, यस और नो? लीनियर पे हम एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि हमने लीनियर में लिखा था x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2, तो यहाँ पे एक टर्म और बढ़ जाएगा n3 x3। तीन से फंक्शन है ना, तो x will be given as n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3.
Now for the point R, the x is 325. So we can write 325 here. N1 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं बताओ? N1 को I can write जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी प्रूफ किया ना सेरेंडिपिटी अप्रोच से। सर -1 आएगा। जीटा इंटू जीटा -1 आया था। यस, Yes. फर्स्ट सेव फंक्शन वाज -1। यस यस, गुड। सो इट इज -1, राइट? दिस इज -1 जीटा इंटू जीटा -1/2 इंटू x1. x1 is 250 plus n2 is जीटा इंटू जीटा प्लस 1/2 into x2. x2 is 500 plus n3 is 1 minus zeta square into x3 is 375. Correct? We can write it in this way. अब इस पूरी इक्वेशन में there is only one unknown zeta, so it can be solved for zeta. You can find zeta. तो इसको सॉल्व करके बताइए कि जीटा कितना आ रहा है। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए जीटा कितना है। ज्यादातर टर्म सब कट जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए जीटा कितना है। -0.4. How much it is coming? -0.4. -0.2. -0.4. -0.4 है ना? Yes, Yes. sir. -0.4. This is the right answer, है ना? मेरे पास सॉल्यूशन में यही आंसर है। गुड। So zeta equal to -0.4. Now zeta is available for this point R. The value of zeta is -0.4. Once zeta is available for R, we can find the safe function for R. So safe function for R are given by N1, N2 and N3. So what is N1? Zeta into zeta minus 1 divided by 2. So zeta is 0.4 minus 0.4. Careful. And it is -0.4 minus 1 divided by 2. Solve कर दीजिए। Similarly, N2 के लिए भी इसी तरह कर लीजिए, जीटा जीटा प्लस 1/2। N3 के लिए इसी तरह कर लीजिए, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस -0.4 होल स्क्वायर, so it is 1 minus 0.16, so it is 0.84. ठीक है, N3 की वैल्यू तो 0.84 आ गई। N1 कितना आ रहा है? N1 बताइए सागर शर्मा। Yes. So N3 is 0.84, N1 is कैलकुलेट किया क्या आप लोगों ने? कितना आ रहा है? 0.28 आ रहा है, चेक करिए जरा। और ये वैल्यू भी निकालिए, जीटा इज -0.4, so it is -0.4 plus 1 divided by 2, है ना? इसको भी सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? So this is coming -0.12. ठीक है, चेक कर लीजिए, सही आ रहा है? हाँ या ना बोलिए। ये ऑल 3 वैल्यूज आर करेक्ट, यस सर। है ना? अब इन तीनों वैल्यूज को जोड़ के देखिए, N1 plus N2 plus N3 जोड़ के देखिए कितना आता है।
0.28 1 आ रहा है। माइनस 0.2 प्लस 0.84 तो 1 आ रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट पर सभी सेफ फंक्शंस का टोटल हमेशा 1 आता है। दिस इज ए कंसेप्ट। पॉइंट आर के लिए भी 1 आ रहा है, और यदि हम किसी और पॉइंट एस पे काम करें तो इसके लिए भी n1 n2 n3 का टोटल 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट 1 के लिए भी n1 n2 n3 का टोटल 1 आएगा, पॉइंट 2 के लिए भी n1 n2 n3 का टोटल 1 आएगा। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमारा इसमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सेफ फंक्शन। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय n1 u1 n2 u2 n3 u3। ठीक है, n1 हमारा 0.28 आया है, पॉइंट आर की बात हो रही है ना, तो 0.28 आया है। u1 हमें क्वेश्चन में 0.15 दे रखा है, 0.15 प्लस n2 हमारा आया है -0.12, u2 हमें दे रखा है -0.15 प्लस n3 हमारा 0.84 आया है, और u3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0। सॉल्व इट, कितना आया? तो 0.06। 0.06 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट भी और सेफ फंक्शन भी। तो आज की क्लास में हमने क्या मतलब लर्न किया है? We have understood how to apply the serendipity approach for finding the safe functions. ठीक है, serendipity approach कैसे अप्लाई होती है? And by using this method to find the safe function is very easy. We can find the safe functions very easily for the quadratic element also, linear element also, and other elements also. ठीक है, in the next class we are going to find the safe function with the help of serendipity approach for the cubic elements. ठीक है, apart from that we have done numerical also, one numerical for the linear element and one for the quadratic element. So in next class we will concentrate on the cubic higher order elements, that is cubic element. Okay, and one more approach we will study, that is Lagrange approach. One is serendipity approach and one is Lagrange approach. So we will also see how to apply the Lagrange approach. Okay, it is from my side. If you have any query, please ask. मेरी तरफ हाँ बोलिए। सर ये मिड टर्म जो 26 अप्रैल से हैं, ये ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे सर? 26 अप्रैल से मिड टर्म की डेट दी हुई है आपको? यस सर। है ना, 26 अप्रैल, और आज टाइम तो हो ही गया आपका। हाँ सर 13 हो गई आज। 13 अप्रैल हो चुकी है। तो अब देखो, ऑफलाइन एग्जाम का तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं समझ में आ पा रहा है फिलहाल, है ना, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वैसे तो एग्जाम डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जहां तक एग्जाम ऑनलाइन होंगे, जहां तक है ना। और सर फिर भी ऑफलाइन क्लासेस एमटेक का बैच साइज बहुत छोटा है, तो अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है अकॉर्डिंगली ही होगा। और सर ऑफलाइन क्लासेस ओपन होने की कोई संभावना है क्या सर आसपास में? नहीं, अभी नहीं है, अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा ना। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, लैब भी ऑनलाइन चलेगी और ये भी ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर। और कोई क्वेरी तो नहीं है इसके अलावा? नो सर। चलो ठीक, थैंक यू।